Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter The End of Bipolarity, and under this chapter we are discussing the causes of the disintegration of USSR, and we have discussed about the economic causes or the economic factor which were responsible for the disintegration of USSR. And under this economic factor we can subdivide this economic factor into sub points. The first is the economic pressure on the country. The pressure was from the arms race which was going on between the superpowers, the race to increase the nuclear arsenal, the military arsenal of the country. That was causing a lot of pressure on the budget of USSR. Then again there was satellite countries. There were satellite countries which were given financial assistance by USSR. So they were also causing burden. They were also a kind of burden, financial burden on USSR. And again the Central Asian republics, which were part of USSR and which were very much economically backward republics. So USSR has to fulfill the financial needs of these republics also. So these were the reason for the pressure on the economy of USSR. Other than this, the other economic factor was stagnation in economy. The economy was totally stagnant. The closed economy was there, planned economy was there, state controlled economy was there, and there was no import export. There was no flow of technology from the Western world, and all these caused stagnation in economy. The condition becomes such that USSR has to import food grains in the last years of its existence, and जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे उनके भी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी कमी आ जाती है. सो इन दिस वे स्टैग्नेशन आ गई इकोनॉमी में. So these are the two reasons, economic reasons. Then we have also discussed about the political reason. In politics also we see that stagnation was there. So causes of disintegration of USSR. First is economic factor, and now second is political factor. And under this political factor we have seen that the government in USSR became highly authoritative and unaccountable. The power was centralized at one place. The only powerful body in the state, political body in the state, was the Communist Party of Soviet Union, and there was single party system. So we have discussed about it, how this single party system leads to unaccountable government. So within political factor there are two sub points. First is political stagnation, unaccountable and authoritative government, which was the result of the single party system. And second is the political system was not able to fulfill the aspirations of the people.
Because what we find that under the single party system, under the communist regime, there is total lack of freedom to the people. People were not having the freedom of expression. They cannot protest against the government, and all these were leading to the dissatisfaction of the people. They started comparing their position, their condition with the people in the Western countries, and what they found that their condition is highly deplorable. So these are the two sub points under political factor, and now we will see some administrative factor. Administration was also became stagnant. Why administration became stagnant? Because the system was such that the state was very powerful. If we consider the relationship between the individual and the state, what we find that the state is very powerful in a communist country, and this power of state is actually used by the government. And under the government also we see that practically the powers of the government is used by the permanent executive. The political executive is there which takes decisions. The Communist Party, the leaders of Communist parties were there to take decisions. And after taking the decisions, what is important is the implementation of those decisions which are taken. And this implementation is done by the permanent executive, which is called bureaucrats. Administration, क्या है administration? जो भी political decisions होते हैं welfare के regarding, whatever decisions are taken by the government, that is practically implemented by the administration. तो एक्चुअली अगर हम देखें कि जो स्टेट बहुत पावरफुल है, तो एक्चुअली स्टेट किस पावर को जो यूज कर रहा है वो कौन है? वो एडमिनिस्ट्रेशन है. एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है दैट इज इन डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल. उनका ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. हमको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आम जनता को, तो हम पॉलिटिकल लीडर्स के पास नहीं जाते हैं. हमें मतलब जो अप्रोच सही करना होता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो हमें ऑफिस में जाना पड़ता है, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना पड़ता है. तो ब्यूरोक्रेट्स आर द पीपल हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉमन पीपल. तो वहां पर क्या हुआ? ब्यूरोक्रेट्स बहुत पावरफुल हो गए. अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल हुए, तो दे स्टार्टेड मिसयूजिंग देयर पावर. So what happened? That corruption, bribery, everything was there in a very great degree. All these things were prevailing in the system of Soviet Union, and all these were causing that stagnation in administration. Administration stagnant हो गया. They were just became the power को जो use कर रहे हैं वो एक privileged class बन गया, जिस क्लासलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश करने के लिए सोशलिज्म लाया गया था. मार्क्स का जो आइडियोलॉजी थी, मार्क्स के ही आइडियोलॉजी पर ये पूरी की पूरी रिवॉल्यूशन हुआ था यूएसएसआर में, रसिया में, और 1922 में यूएसएसआर बना था. तो मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, बट एक्चुअली क्या होता है कि क्लासलेस सोसाइटी के लिए आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी तो अबॉलिश कर दिया, बट एक नया क्लास आ जाता है, प्रिविलेज क्लास, दैट इज द क्लास ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ज्यादा पावरफुल होना लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें जो कुछ भी ब्यूरोक्रेट्स को डील करना पड़ता था, उनके पास जाना, तो उनसे काम करवाना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी. तो इस तरह से लोगों के डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे. एडमिनिस्ट्रेशन में स्टैग्नेशन आ गया था. So the third reason is stagnation in administration.
Okay, and now we come to the fourth reason. The fourth reason is reforms of Gorbachev. We have discussed about this, when we were discussing the events of disintegration. We have discussed about it, how and why reforms of Gorbachev actually caused the disintegration of USSR. That is one of the reason. Actually, Gorbachev, the reforms of Gorbachev were aimed at improving the system, reforming the system. Whatever problems were there, like इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रही थी, तो उस स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए ही उन्होंने रिफॉर्म्स लाए. ओपननेस, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका को अडॉप्ट किया, रिस्ट्रक्चरिंग किया, इकोनॉमी का ओपन किया, इकोनॉमी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कुछ भी हो रहे थे वेस्ट में, उसको उसका जो बेनिफिट था वो उठाने की बात हुई. वेस्ट के साथ रिलेशन को इम्प्रूव किया. एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइट कंट्रोल था इकोनॉमी पर, उसको कम किया. तो ये सारे जो रिफॉर्म्स थे, एक्चुअली ऑल दीज रिफॉर्म्स वर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी, है ना. रिफॉर्म्स तो इसलिए किए गए थे ताकि हमारा जो इकोनॉमी की कंडीशन खराब हो गई है, स्टैग्नेशन आ गई है, वो दूर हो जाए, इकोनॉमी स्ट्रांग बने. बट एक्चुअली जो हुआ वो बिल्कुल ही उल्टी ही चीज हो गई. क्योंकि हम देखते हैं कि जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे, एक्चुअली they became a kind of catalyst. They played the role of a catalyst in this process of disintegration. Catalyst का रोल प्ले करता है और disintegration के प्रोसेस को फास्टर कर देता है. डिसइंटीग्रेशन तो ऐसे भी होना था, जो कंडीशन हो गई थी यूएसएसआर का कि उसमें वो बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता था. बट हम ये जरूर कहेंगे कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने उस डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को फास्ट कर दिया. और ये क्यों हुआ, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि गोर्बाचेव को सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल पाया. एक्चुअली जो उनके रिफॉर्म्स थे उसको लेकर के देखा जाए तो पूरी कंट्री जो थी, दैट द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. देयर वर सम हु वर ऑफ द ओपिनियन दैट गोर्बाचेव इज रिफॉर्मिंग द इकोनॉमी एट अ वेरी स्लो पेस. द पेस शुड बी फास्टर. इतने धीमी चाल से ये जो चल रहे हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट. इट विल नॉट ब्रिंग इट विल नॉट रिवाइव द इकोनॉमी, है ना. तो कुछ लोगों का ये सोचना था कि और भी ज्यादा तेजी से आप काम करिए, जितना आपने ओपन किया है उससे ज्यादा ओपन करिए इकोनॉमी को. जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल को आपने लूज किया उसको और भी ज्यादा, ये स्टेप बाय स्टेप वो चलना चाह रहे थे गोर्बाचेव. बट जो एक ग्रुप था वो ये मान रहा था कि नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, जो कंडीशन हुई पड़ी. तो वो ग्रुप गोर्बाचेव को सपोर्ट नहीं कर रहा था. ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ ग्रुप, and this group was mainly those who were the supporters of the Communist Party of Soviet Union. So these were the people who were of the opinion that there is no need to reform the system. Whatever was done by this Gorbachev, whatever is done by Gorbachev, like this glasnost and perestroika, there is no need of doing all these things. These are of no use. तो क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि गोर्बाचेव को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल पाया. He was not getting सपोर्ट. हर कोई चाह रहा है कि जिस पेस से वो रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो बहुत ही स्लो है. किसी का कहना है कि इन रिफॉर्म्स की जरूरत ही नहीं थी. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स. और इसी में हम ये देखते हैं कि इसके साथ ही साथ कुछ और भी चीजें हो जाती हैं जिससे कि हमको ये समझ में आता है कि डिसइंटीग्रेशन जो है वो एक अनअवॉइडेबल चीज था, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है. और ये कहना कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज टोटली रॉन्ग. यस,
it is not कि only because of the reforms which were done by Gorbachev were responsible for the disintegration of the USSR. Actually what we find that there was rise of nationalism and there was desire for sovereignty within various republics of USSR, and this rise of nationalism and desire for sovereignty became one of the most important reasons for the disintegration of USSR. So our fifth point is rise of nationalism. Rise of nationalism and that desire of sovereignty. ओके तो ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है और डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी होता है, जो इसके डिफरेंट रिपब्लिक्स होते हैं, खास करके जो हमने जिसको डिस्कस किया था इसको भी इवेंट्स में, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीन जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, इनमें सबसे पहले स्टार्ट होती है। इसमें भी लिथुआनिया जो था उसमें सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल होता है स्टार्ट होता है, तो और वो बन भी जाते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री। इसके बाद रसिया के अंदर में भी, रसिया भी यूएसएसआर के साथ अब नहीं रहना चाह रहा था, और ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। रसिया के अंदर भी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आती है। इसके अलावा यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सारे जो रिपब्लिक्स थे वो बिल्कुल भी अब यूएसएसआर के साथ में नहीं रहना चाह रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना इसके डिसइंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इस तरह से ये इन रीजंस को हमने डिस्कस किया है। सो दीज आर द रीजंस। इसको ये ब्रॉडली दीज आर द 5 रीजंस, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर उसके अंदर दो फैक्टर्स हो रहे हैं, उन 2 फैक्टर्स के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट्स हो रहे हैं। देन पॉलिटिकल फैक्टर में भी दो रीजंस हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हमारा ये मिला करके पूरा आंसर हो जाता है। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो जब हम कॉन्सिक्वेंस डिस्कस करेंगे तो बहुत ही नेचुरली चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, वो ये हुआ कि जो वर्ल्ड था, द नेम ऑफ द चैप्टर, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जो वर्ल्ड अभी तक बाइपोलर था अब वो यूनिपोलर हो जाता है। जो 2 पोल्स थे यूएसए एंड यूएसएसआर, वो अब क्या होता है कि देयर इज ओनली 1 सुपर पावर इन द वर्ल्ड, है ना। तो इस तरह से जो फर्स्ट इम्पैक्ट इसका हुआ या कॉन्सिक्वेंस हुआ वो यही हुआ कि बाइपोलर वर्ल्ड टर्न्स यूनिपोलर। और इस यूनिपोलर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो अमेरिका की हेजीमनी होती है। अमेरिका हर in all spheres of life, like economic, then military, then cultural, America is the dominant country. तो इस तरह से बाइपोलर वर्ल्ड का एंड हो जाता है। हम जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया था जब हम इवेंट्स पढ़ रहे थे, तो किस तरह से गोरबाचेव जो वो डिक्लेयर करते हैं कि वॉर्सॉ पैक्ट में जिन लोगों ने साइन किया है अब वो उसको छोड़ सकते हैं, वो अपने फ्यूचर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो बता रही हैं कि जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर बन जा रहा है। हालांकि जो यूएसएसआर था उसका सक्सेसर रसिया बनता है। रसिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। रसिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनता है।
इकोनॉमी भी स्ट्रांग थी, लेकिन हम उसको कभी भी किसी भी तरह से अमेरिका के बराबर में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पावर्स बहुत बहुत आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो यही है कि बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड में बदल जाता है। और इसी के साथ एक जो इससे जुड़ा हुआ ही कनेक्टेड कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज एंड ऑफ कोल्ड वॉर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, बिकॉज व्हेन देयर इज नो there is only one सुपर पावर, दैट इज अमेरिका, तो फिर कोल्ड वॉर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और यहाँ पर एक बात ये भी हम देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर है एक्चुअली वो एंड होता है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है। जैसे जब भी लड़ाई होती है तो कोई एक जो साइड है वो जीतता है, दूसरा साइड हारता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हार और जीत हो रही है, क्योंकि यूएसएसआर जो कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था, यूएसएसआर जो कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को चैंपियनिंग कर रहा था, वो यूएसएसआर खत्म हो जाता है। इसका मतलब अगर हम इस कोल्ड वॉर को आइडियोलॉजी का स्ट्रगल कहते हैं, तो इस स्ट्रगल में जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, लिबरल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी है, वो जीत जाती है और कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की हार होती है। तो इस तरह से कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है। और जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस है वो हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड मैप है, उस वर्ल्ड मैप पे बहुत सारे नए नए कंट्रीज जो हैं वो आ जाते हैं। यूएसएसआर 15 रिपब्लिक्स से मिलकर बना था। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो 15 रिपब्लिक्स थे वो सभी फ्री हो जाते हैं, वो सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाते हैं। और जब ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनते हैं तो फिर ये यूएनओ को ज्वाइन करते हैं, कुछ जो है वो नेटो को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और इतना ही नहीं, इस यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का ही एक इम्पैक्ट ये भी हुआ कि जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे, वहां पर जहां पर कि ईस्टर्न यूरोप की वो कंट्रीज जो कि सोवियत ब्लॉक वाले कंट्रीज कहलाते हैं, जहां पर कम्युनिस्ट रेजिम था, वो भी डिसइंटीग्रेट होते हैं। इसके दो एग्जाम्पल है, यूगोस्लाविया एंड दिस चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये इसका इम्पैक्ट था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का ही इम्पैक्ट था कि चेकोस्लोवाकिया का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। चेक गणराज्य बनता है, चेक रिपब्लिक, और दूसरा जो है वो बनता है स्लोवाकिया। ठीक है, तो इस तरह से चेकोस्लोवाकिया का एंड होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, और साथ ही साथ यूगोस्लाविया का भी डिसइंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर एक चीज हम ये भी देखेंगे कि जो चेकोस्लोवाकिया का डिसइंटीग्रेशन होता है वो बहुत ही पीसफुल होता है, लेकिन यूगोस्लाविया का डिसइंटीग्रेशन जो है वो काफी वायलेंस, काफी लॉस ऑफ लाइफ के साथ होता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट इसमें आएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो कि अब हम लोग जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज शॉक थेरेपी। सो द थर्ड कॉन्सिक्वेंस वाज द emergence of new independent countries. Okay, तो इस तरह से ये इम्पैक्ट हुए, और इम्पैक्ट में ही शॉक थेरेपी भी आता है, तो उसको भी हम इसके पॉइंट के अंदर ही रखेंगे। शॉक थेरेपी अब है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है। जो यूएसएसआर में पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी वो स्टेट कंट्रोल्ड थी। अब वो सारा कुछ जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। कोई नया सिस्टम जो है वो आया नहीं है, न कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज in such a disorganized way कि people were not able to understand what was happening.
एंड इन दिस सिचुएशन जिसको हम कहेंगे कि देयर वाज टोटल लैक ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. व्हाट हैपन्स कि इन कंट्रीज में जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं यूएसएसआर के, जो अभी तक पार्ट थे, अब वो उनका ट्रांजिशन का फेज स्टार्ट होता है. ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो? they were a socialist country, a state controlled economy was there, and now they are transforming to the capitalist economy. तो जो ये state controlled economy था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मार्केट इकोनॉमी में. जो कम्युनिज्म था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कैपिटलिज्म में. तो ये जो ट्रांजिट हुआ फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, फ्रॉम planned economy to market economy, this transition was very sudden. बहुत सडनली चेंज आया. नथिंग वॉज प्लान्ड. कुछ भी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ. सब कुछ बिल्कुल अचानक से हुआ, सडनली. और ये जो सडन चेंज हुआ ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल था. बिकॉज ऑफ सडन चेंज से भी पेन होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जब इतना सडनली चेंज आता है तो ऑब्वियसली वो पेन लेकर आएगा. और इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है शॉक थेरेपी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शॉक थेरेपी. थेरेपी दी जा रही है. प्रॉब्लम थी, बीमारी थी. बीमारी ये था कि इकोनॉमी जो है वो स्टेट कंट्रोल थी, प्लान्ड इकोनॉमी थी, जिसके कारण पूरा का पूरा इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गया था. तो अब इसको सही करने की जरूरत है, इसको थेरेपी देने की जरूरत है, इसको सही करने की जरूरत है. बट ये जो सही किया गया, जो थेरेपी उसको दी गई, वो कैसे दिया गया? जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक देकर के जब किसी पेशेंट को सही किया जाता है, किसी पेशेंट के रिकवरी के लिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है. मेडिकल साइंस में ये होता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है. जो मेंटल इलनेस होती है उससे उसको रिवाइव करने के लिए, बाहर लाने के लिए. तो ये जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही सडन इम्पैक्ट होता है. बिल्कुल मतलब तुरंत भर में इलाज हो जाएगा. थेरेपी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सडनली हो जाएगा. बट पेन बहुत होता है. जिस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ थेरेपी, वो उसको बहुत ज़्यादा पेन फील करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस करना पड़ता है. बट वो थेरेपी है ना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो एक तरीका होता है. तो इसी तरह से जो यहाँ हम देख रहे हैं, जो इकोनॉमी है, जो कि प्लान्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर कि पूरी के पूरे स्टेट का कंट्रोल था, अचानक से वो सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसका ट्रांजिशन अब हो रहा है मार्केट इकोनॉमी में. ये ट्रांजिशन बहुत ही सडन है, उतना ही सडन है जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक दे करके किसी को सही करने का जो काम होता है, जितनी जल्दी में किया जाता है, उसी तरह से ये किया जा रहा था. और इसके कारण जो इन कंट्रीज के लोग थे उनको बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस करना पड़ा. पेनफुल चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और इसलिए इसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं. तो ये जो ट्रांजिशन हुआ रसिया में, सेंट्रल एशिया में, देन ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज थे, जो कि सोवियत ब्लॉक के कंट्रीज थे, और ये ट्रांजिशन जो हुआ उसको किसके गाइडेंस में हुआ? ये सारा कुछ जो ट्रांजिशन हो रहा था, इसके लिए किसी भी डिसइंटीग्रेटेड जो कंट्रीज, जो नए रिपब्लिक्स बने थे, नए कंट्रीज बने थे, वहां पर कोई सिस्टम नहीं था. बल्कि ये सारा कुछ जो गाइडेड हो रहा था, इन्फ्लुएंस्ड हो रहा था, वो वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से हो रहा था. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, उनकी तरफ से ही ये सारा ट्रांजिशन, सडन ट्रांजिशन हो रहा था. और इसी को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं. और ये जो शॉक थेरेपी की जो इंटेंसिटी थी, जो स्पीड थी, वो डिफरेंट था. ये नहीं हम कह सकते हैं कि जितने भी रिपब्लिक्स बने USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद, उन सबको एक ही सेम टाइप ऑफ ट्रॉमा फेस करना पड़ा. जो शॉक थेरेपी थी उसकी इंटेंसिटी सेम थी, स्पीड सेम थी, बल्कि हर कंट्री में वो डिफरेंट थी. उनका जैसा बहुत सारी चीज़ों पर ये
डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन था और जो फीचर्स थे वो सेम थे सारे रिपब्लिक्स में। कि डायरेक्शन क्या था, फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। तो ये जो ट्रांजिशन था वो हमें हर जगह एक ही था, यही था। और जो फीचर्स थे लाइक जो भी चीजें हुई इसके अंदर, प्राइवेटाइजेशन हुआ, देन जो गवर्नमेंट का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था उसको एंड किया गया, वो सारी चीजें जो थी वो सेम थी। इसी को हम लोग और भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।